किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। कहते हैं कि अगरच बुत है जमाअत के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बातें आज मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ बिकॉज आज दारज मुरसल पॉडकास्ट पे एक ख़ास मेहमान है। ही इज़ एन एजुकेटर, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ द स्टूडेंट्स फेवरेट। आप इन्हें नबील शौकत के नाम से जानते हैं या फिर कश्मीर वेकअप। अब जी मैंने इन लाइंस के साथ स्टार्ट क्यों किया? बिकॉज कहते हैं ना कि अगरच बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां। इस चीज़ की अगर कोई एग्जाम्पल मैंने देखी है अपने लाइफ में तो वो है नबील भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Walaikum salam. So, Mursal, before we can start, it's a proud moment for me. Mursal has been my junior in my college. So, today, sitting in front of you, it's an amazing feeling today. Thank you so much. Okay, so basically, I'll tell you why did I come into this education field. When we completed our BTech, and it was not a choice that I had to do BTech. It was mostly my parents told me to go for BTech, like most of us have done. You also have completed BTech, and it was all because of parents, because they thought there is scope in BTech Civil. So most of the, I'll tell you, 92, 95 born kids have been going into this civil field because they thought that we'll be posted here in Kashmir. But problem was that out of every 100 students that used to go to outside universities, we had 95 to 97% of those students opting for BTech Civil. And you'll see most of them in different fields. Today, like I am in coaching sector, or you'll say in education, but somebody are in call center, somebody are working in somewhere else. So Someone we is doing couldn't. radio, Yes, someone someone is is doing doing radio. podcast. So we couldn't get that actual field for which we had opted. So the problem we found that here in Kashmir, we do not follow what a child wants to be. We follow what our neighbor has done. For example, if in your neighborhood somebody has got selected in NEET or JEE, you'll see all the 20 houses that are in neighborhood, they are following the stream. We are following that herd mentality. यहाँ पे कोई भी काम सक्सेसफुल होता है तो वी डू नॉट सी दैट इसमें कैपेबिलिटी थी एंड दिस चाइल्ड वांटेड टू डू दिस थिंग, बट नो, वी ट्राई टू फॉलो दैट. दैट इज द most important thing that forced me to come into this field, and we are trying to do something different. We started with this Kashmir Wake Up group, wherein we went to every school of Kashmir Valley, wherein we tried to tell children and parents also that please do not force your child to be a doctor or an engineer. Try his skills, check his skills up to 10th, check his skills, what is the basic strength that your child is having. Maybe he's not good in mathematics, but he's good in humanities field, so try to give him those subjects rather than forcing him to be an engineer or doctor. तो क्या आपको, मैं ये उर्दू में पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि हमें कोई सिखाता नहीं है? हमारे पेरेंट्स को जब हम पैदा होते हैं ना, हमें जैसे पता होता है कि हमें स्कूल जाना है या बच्चों को स्कूल भेजना है, इसी तरह फिर जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो हमें जैसे खुद ही पता होता है कि इसके बाद हमें 10th में ये पकड़ना है, वो पकड़ना है। एक्चुअली एक पैटर्न सा है ये शायद जो हम फॉलो कर रहे हैं, और ये पैटर्न को फॉलो करना कहीं ना कहीं पे वो जो कॉपी कैट जिसे हम जो आप कह रहे हैं herd mentality, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे करियर्स तबाह हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है ना कहते हैं कि इंसान की लाइफ का जो होता है एक्सपेक्टेंसी रेट होती है 60, उसके बाद ऑलमोस्ट एवरेज में 60 की एज में लोग मर जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीदों की जो ये होती है दैट इज़ 17-18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि कुछ ख्वाब देखे होते हैं बच्चों ने, वो पूरे नहीं होते। सो डू यू थिंक कि ये पेरेंट्स भी सोसाइटी के प्रेशर से बंधे होते हैं, या फिर ये एक अब पैटर्न बन चुका है, एक लूप है जिससे हमारा बाहर आना मुश्किल है? Mursal, देखो, I'll be a bit ना controversial here. We are born in a land wherein we have had conflicts. तो हम सब लोगों की ना mentality कहीं ना कहीं we are selfish. So we want हमारा अच्छा होना चाहिए, बाकी का कैसे होता है क्या होता है we don't care about that. So somewhere there is where we commit any mistake. हमारे parents का हमेशा होता है, I'll take my mother and father, they always wanted me to be better than them. But they thought the safest choice in being better than them was going into civil engineering field and he'll be posted in Kashmir. उनने कभी ऐसा analyze नहीं किया there are much more better fields than this. अगर बच्चे ने 4 साल की graduation की जगह BBA simple किया होता, BCA simple किया होता, and what some of our batchmates did, and they got settled much more than us. True. So that is the thing that we have to look at now, all other career options that are available here, and thoda a selfish mentality copying from our neighbors, copying from different people, that has to be stopped. We have to completely see what are the career options available, and it is not necessary that your child has to settle in Kashmir then only he is successful.
our Kashmiris, NRIs who are staying outside, they are doing much more better than what we are doing in Kashmir. So only request to our parents or even those children who will be watching us that beta, check your skills, check your skill set, and check your strengths. SWOT analysis होता है एक चीज़ wherein you check your strengths, Strengths, weakness, weakness. opportunities that you have, threats that you have. So beta, please do that analysis before choosing any stream. And what have most of the civil servants, if you will see, what have they done here? They have completed their MBBS, डॉक्टर नहीं बने, दे केम इनटू सिविल सर्विस फील्ड. तो जब आप देखोगे फिर तो वो मेडिकल जो 5 साल उन पे मेहनत लगी, दे हैव वेस्टेड दैट 5 years गोइंग इनटू मेडिकल प्रोफेशन. अच्छे अच्छे GMCs, एम्स से सीट ले ली. हमारे मोस्ट ऑफ द जो ब्यूरोक्रेट्स है, दे कंप्लीटेड देयर MBBS बट स्टिल आर इनटू ब्यूरोक्रेसी नाउ. जो 5 साल मेहनत लगी, हमने डॉक्टर्स बनाए, द रिसोर्सेज दैट वी स्पेंट ऑन देम, कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा डिरेल हो गए हम उनसे. नो डाउट दे आर डूइंग मच मोर बेटर, बट कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हमारे डिरेल हुए. सो दैट इज ओनली बिकॉज हमारे पास प्रॉपर काउंसलिंग नहीं थी. इफ द सेम पर्सन वुड हैव कंप्लीटेड हिज BBA और एनी नॉर्मल ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंथ्रोपोलॉजी, तो हमारी वो मेडिकल कॉलेज की सीट कहीं पे वेस्ट नहीं होती. ट्रू. अच्छा, एक और यहाँ पे मुझे सवाल आता है जहन में कि कंसल्टेशन जो होती है या कंसल्टेंसीज़ अगर हम बात करें कश्मीर पे, जहाँ तक मेरा ये है एस्टिमेट है, देयर आर मोर देन 150 कंसल्टेंट्स जो कि रजिस्टर्ड हैं कश्मीर में राइट नाउ. डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं पे दे हैव लैक्ड, या एक प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं होती है, या फिर एक पेरेंट एक गलत कंसल्टेंट के हत्थे चढ़ जाता है? आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, विदाउट ब्लेमिंग एनीवन, डू यू थिंक ये एक सिस्टमैटिक वे में नहीं हो रहा? I think before we go on to consultancies, we have to see was schooling right. If schooling would have been right, फिर तो बच्चे को पहले ही पता लग जाता that where am I going wrong. कहीं ना कहीं in school level, we from class 8th only, you have to ना talk to your child and see his strength कहाँ कहाँ पे है. Then जब 12th के बाद आते हैं, consultant का काम वहाँ शुरू होता है, wherein he tells you if there are 10 choices. For example, you have made a choice that I have to go in for MBBS, then a consultant can provide you 10 choices and उसमें से एक दो बोल सकता है they are better. But main thing that we are lacking here is in our schooling. And one more thing that I'll add up to this thing, that स्कूलिंग में हमारे ना मॉरल वैल्यूज भी अब बहुत कम होने लगे हैं. बिकॉज व्हेन वी वर ना यंगस्टर्स, दैट आपको पता होगा दरसगाह का कल्चर बहुत अच्छा था. एंड दरसगाह हमारा ओनली, वहाँ पे हम रिलीजन नहीं सीखते थे, वी यूज्ड टू लर्न द बेसिक मॉरल वैल्यूज. बट कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग दैट. खासकर श्रीनगर में यू विल सी दरसगाह का कल्चर बहुत डाउन हो चुका है. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू इनकलकेट दीज थिंग्स बैक टू स्कूल्स. और दरसगाह जैसे हमारा फ्राइडे सेरेमन होता है, तो उसमें भी मॉरल वैल्यूज हमें लाने ही लाने पड़ेंगे. आदाब ज़िंदगी सिखाते थे बचपन में दरस में. हम कहीं ना कहीं मुझे वो याद आता है, वरादा वरादा दरसा दरसा के साथ साथ फिर मौली साहब बोलते थे कि उठो नेल्स दिखा. स्कूल में अलग चेक होते थे, फिर हम हंसते थे उस टाइम पे. लेकिन ये बात आपने सही की, अब तो शायद NEP में भी आया ना कि स्कूल में काउंसलर होना चाहिए. NEP पॉलिसी साइकोलॉजिस्ट भी अब मैंडेटरी है. और कश्मीर में अगर आप देखोगे ना, बिकॉज वी डील विद चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप 12 to 18 somewhere, we see that most of the children are not having these anxiety issues, depression issues. But I don't think so हमारी एज में हमें ये टर्म्स भी पता नहीं था. आई थिंक ये प्रॉब्लम हो गई है. पहले तो children have been introduced to these terms, and what do they do? किसी ने कहा I have anxiety, they come up with the Google search and say मुझे ये symptoms है, and फिर they declare themselves that I am having anxiety, I am having depression. और आप देखोगे, I'll tell you 30 to 40% of our children are on sleeping pills. They go and consult the doctors, but I think this is a very bad exercise जहाँ पे हमारे parents भी ना without actually understanding what their children want, we force them into the careers or we force them into the things that they don't like, and ultimately we end up having these anxiety and other disorders. ये सही बात है. ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की आप बात कर रहे हैं कि अब हम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल है, तो बच्चा क्या है वो सिम्टम्स, नीम हकीमी तो कश्मीर में पहले से चल रही थी. अब जो यंग जनरेशन है, जो हमारे छोटे छोटे 18 अप टू 18 जो बच्चे होते हैं, वो ऐसी ऐसी टर्म्स बोलते हैं कि मुझे अभी भी वो, मतलब आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस देम. I'll be shocked. मतलब I am shocked when I see somebody is telling me that I have this sleep disorder. I cannot even pronounce that name. तो I thought when we were of their age, हमें तो ये पता नहीं था. अल्हम्दुलिल्लाह we were ना, हम सीधे साधे थे. हमने कहीं ना we were not so much socialized. We had no social media effect. तो कहीं ना कहीं social media का effect on our children is getting very bad. एक ना pseudo comparison है. आप कोई भी reel देखोगे, they start comparing
think that being successful is getting a good car, but I think हमारे time में उल्टा था, being peaceful, playing with your friends was a big more thing. better achievement. अच्छा, if I will honestly ask you a question, that हम लोग ना रेस्टोरेंट पे कब जाते थे जब ईद की वो ईदी मिलती थी? ईद का दिन हो या कोई स्पेशल पिज़्ज़ा ओकेजन, हाउसेस, आई थिंक दैट वाज एन ना लग्जरी एक लग्जरी लग्जरी वाली थी लाइफ पिज़्ज़ा। थी हमारे. हाँ, बट आई थिंक विद सोशल मीडिया दीज थिंग्स आर कमिंग, नो डाउट दे आर गुड, बट आई थिंक समवेयर वो बैलेंस हमसे बिगड़ रहा है. वी आर कंपेयरिंग आवर लाइफ विद somebody who is sitting in US, who has different avenues, who has different sources of income. और हमारे बच्चे जब वो देख रहे हैं ना तो एक फेक कंपैरिजन हो रहा है. तो आई थिंक सोशल मीडिया इज बैडली इफेक्टिंग आवर जनरेशन इन सम वे और अदर. नीट की मैं बात करूँगा क्योंकि आपकी स्टूडेंट्स के साथ वाबस्तगी है. दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग नाउ. ये नीट की कोचिंग एक साइड, बिकॉज आप इससे भी वाबस्ता है कोचिंग में भी. तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि एक कॉमन चीज़ है सभी स्टूडेंट्स में, ड्यू टू विच दे कैन नॉट क्वालिफाइड, या फिर उनमें पोटेंशियल बहुत होता है पर वो रह जाते हैं? वो एक रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, I'll tell you different why. What is the one common thing that I found in students who qualified this exam? वो common thing जो मैंने देखा that एक तो hard work होता ही होता है, there is no substitute of hard work. Second, they are selfish. ठीक है. Okay. एंड आप मोस्टली आप देखोगे व्हेन वी वर आल्सो स्टडीइंग फॉर ना सिविल सर्विसेज इन दिल्ली, तो आवर मेंटर टोल्ड अस दैट प्लीज बी सेल्फिश. क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आप जहाज में चढ़ते हो ना, यू गो इन एनी एयरप्लेन, व्हाट डू दे से? अगर किसी खुदा और ना की खास्ता सहायता जहाज करने में से कुछ पहले होता है, अपनी हाँ सहायता पहले करो। अपना ख्याल रखो फिर. तो हमारे यहाँ ना बच्चे जो पढ़ने में आते हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग गुड, तो आपको जो क्लासमेट्स होते हैं 10-15 वो आ जाते हैं दैट हमें भी गाइड करो, हमें भी ये गाइड करो. तो बेटा आई एम टेलिंग यू, आप तो गाइड करो लेकिन बी अ बिट सेल्फिश. पहले आप खुद कुछ बनो. व्हेन यू विल बी इंशाल्लाह इन जीएमसी, व्हेन यू विल बी इन एनी गुड कॉलेज और एनी गुड यूनिवर्सिटी, तो फिर आप कौम की खिदमत कर सकते हो. तो इस एज पे आप बाकियों को हेल्प करते करते खुद डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, बिकॉज देयर आर मेनी एलिमेंट्स. आप जब हेल्प करने के लिए जाते हो ना, 2 लोग 3 लोग माइट बी जेन्युइन, बट देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द पाथ. जैसे 3 इडियट्स में था, समवेयर वो रियलिटी है कहीं ना कहीं. जेलेसी, पॉजिटिव जेलेसी इज ऑलवेज देयर. जेलेसी इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमैनिटी. तो कहीं ना कहीं बेटा वो चीज़ें होती है. तो आई वुड ओनली रिकमेंड ऑल दोज चिल्ड्रन, बिकॉज बेटा बेटा क्यों निकल रहा है, बिकॉज व्हेन आई टॉक टू चिल्ड्रन आई टेल देम इन दिस वे ओनली. सो प्लीज़ बी अ बिट सेल्फिश. पहले आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए. और जिनने भी नीट अभी तक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने देखा दे हैव क्वालिफाइड, दे हैव बीन अ बिट सेल्फिश. सो यू हैव टू बी दैट. इंशाल्लाह जब आप कुछ बनोगे फिर आप बाकियों की सहायता करो. एंड सबसे बड़ा रीज़न फॉर ऑल दोज हु हैवंट क्वालिफाइड, मैं कहता हूँ 99% स्टूडेंट्स हु सिट इन द क्लास, they have the same facilities, they have the same books, they have the same mentors, but only one thing is that ना कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है. सो जो बच्चा खोता है अपना मोबाइल, अपना मतलब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, अपना फ्रेंड सर्कल इस 1 साल के लिए, अपनी बाकी डिस्ट्रैक्शंस को, तो वही सक्सेस अचीव करता है. तो जितना आप खोओगे उतना आप ज़्यादा पाओगे. सो दैट इज़ माई एडवाइस टू ऑल द यंगस्टर्स. ट्रू दैट. अब उन पेरेंट्स का क्या, स्टूडेंट्स की तो बात हो गई. व्हाट अबाउट दोज पेरेंट्स के जब उनका बच्चा क्वालिफाई नहीं करता है ना, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट. मे बी वो शायद वो बच्चा उसके लिए बनाने. आपने 3 इडियट्स की बात की, मैं दरशील की बात करूँगा तारे ज़मीन पर. जी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो आर मेड फॉर समथिंग एल्स, बट एक पेरेंट्स का प्रेशर होता है और वो पेरेंट्स समझते भी नहीं हैं. तो क्या आपके पास कोई ऐसे पेरेंट्स आए हैं, एंड उन पेरेंट्स को आप फिर कैसे टैकल करते हैं? मैंने आपको पहले भी बोला दैट देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज दैट कम्स विद द नेम ऑफ स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, उसमें ना बच्चे को हम बिठाते हैं, पेरेंट को बिठाते हैं, एंड वी राइट दिस एक्रोनियम स्वॉट ऑन द पेपर, एंड फिर ब्रेक डाउन करते हैं दैट बच्चे की स्ट्रेंथ क्या क्या है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे की स्ट्रेंथ है, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स. ठीक है. नाउ हिज वीकनेस इज ही इज़ नॉट गुड एट क्रैमिंग. सो बॉटनी, ज़ूलॉजी और एनी अदर जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वीकनेस होती है. फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं. बच्चा के लिए अपॉर्चुनिटी कौन सी है. इफ़ ही इज़ गोइंग फॉर मेडिकल, तो उसके लिए पहले तो एमबीबीएस आ जाएगा, फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑप्टो, बीएससी रेडियोलॉजी, पैरामेडिकल एंड ऑल अदर कोर्सेज. फिर उसके बाद थ्रेड्स देखते हैं. इफ़ ही और शी इज़ गोइंग फॉर एमबीबीएस, 22 लाख मोर कैंडिडेट्स आर अपीयरिंग इन दिस. तो ये सबसे बड़ा थ्रेड बन जाता है. और जब हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं तो थ्रेट में वी राइट व्हाट आर देयर ना शॉर्ट कमिंग्स. फॉर एग्जाम्पल किसी का थ्रेट होता है दैट ही और शी इज़ नॉट एबल टू फोकस फॉर 6 to 7 hours, बिकॉज टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिनिमम 6 to 7 hours आर रिक्वायर्ड. तो वो हम थ्रेट में डाल देते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो वो उनकी थ्रेट में आ गया. तो दिस व्हाट एनालिसिस इज डन आफ्टर क्लास 10. उससे पेरेंट को भी एक क्लियर आइडिया मिल जाता है और बच्चे को भी एक आइडिया मिल जाता है व्हाट विल बी गुड फॉर मी, व्हाट विल बी बैड फॉर मी.
तो कितने बच्चे अपेयर होते हैं नीट के लिए? From India, I think around 18 to 22 lakhs तो हर साल अपेयर होते हैं. और क्वालिफाई कितने करते हैं? बहुत कम, 1 to 2% रेशो होता है. एंड if you would have appeared in NEET last year, you would have seen 20 to 30 students securing 720 out of 720. व्हाट इज़ दिस बेसिकली, मैं आ रहा था इस पे, ये मेरा बेसिकली कहते हैं ना पंच क्वेश्चन था आपके लिए कि 720 आउट ऑफ 720, पहले तो इसको भूल ही जाते हैं, 12th में 500 आउट ऑफ 500, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि जो भी इंग्लिश नोइंग है ना, एटलीस्ट जिसको इंग्लिश की नॉलेज होगी, Exactly. यू कैन नॉट स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एनी डे, आप चाहे फिर शेक्सपियर ही क्यों ना है. सो बेशक. व्हाट इज़ दिस 500 आउट ऑफ I 500? I'll tell you, what this is my personal opinion, that after COVID the government has been a bit lenient in setting of the paper for competitive exams, also in these board exams also, because 9 COVID के बाद बहुत disturbance हुई. For 2 to 3 years we were in this disturbed state of mind. That's why in order to ease down a bit, I think government had done that. Otherwise it is not possible to Is get good marks like that 720. And चलो एक तो exception हो सकता है, but 10 to 15 students getting this score was a bit impossible. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूंगा, इज इट गोइंग टू बी द नेक्स्ट 90 पास, नमतुक पास, द कोविड पास? क्या ये इफेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को कल को करियर्स में कि यार कोविड पास? बिकॉज आई डू हैव सम कलीग्स और एम्प्लॉयज़ इन माई ऑफिस जिन्हें ये टॉन्ट लगता है. क्यों? क्योंकि सर जब मैं ये पढ़ रहा था या पढ़ रही थी तब कोविड था, तो हमने प्रैक्टिकली तो नहीं किया, हमने थियोरेटिकली पढ़ा. मास कॉम की बात करूँ तो यहाँ से वापस जाओ होता है कोई कोविड पास. Is it going to hamper I their think careers? yes, a bit, but it was a worldwide phenomenon, so it was not limited to any one place. I think उससे तो ये negate हो जाता है effect. But कहीं ना कहीं I also saw people, we had these placement drives, I think a week before. तो कहीं ना कहीं we saw that level of theoretical knowledge was a bit weak in students. And when we told them that this was the basic questions that we were being taught in first year, because I have done my BTech in 2000, I think 16, completed it in 16, and somebody who's in 2024 pass out would have better knowledge than me. तो कहीं ना कहीं they had these issues wherein they said that COVID में थोड़ा we missed these classes, but I think effect negate होगा. It's a worldwide phenomenon. ये मेरे साथ भी हुआ है, बिकॉज यू नो हम सिविल इंजीनियर्स शायद ऐसे ही होते हैं, कोई जूनियर दिखा नहीं, बता फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वो क्या होता है, 1.5 होता है. अच्छा, लेटरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, ये जब ब्रिज से जा, आपके साथ है ब्रिज से जब जाते हैं फिर Maximum. कश्मीर में पता है क्या बोलते थे, जब मैं 12th में था तो ब्रिज में वो डालते हैं ना बीच में गैप, जी जी हमें जी. तो पता है हाँ. उसको एक्सपेंशन जॉइंट जिसे हम कहते हैं. लेकिन तब जब हम यहाँ 12th में थे तो मेरा जो घर है शोपियान में, वहाँ एक फेमस ब्रिज है तचवां रंग कदल, तो उसमें भी ये डाले थे. तो अब फादर वगैरह बिकॉज दे डोंट हैव, वो कहते हैं कि शि ठेकदरन सूवर करूँ जात्रे में थी. बट जब मैंने वो पढ़ा ना एक्सपेंशन जॉइंट किस लिए होता है, बट ट्रस्ट मी, मैंने 4 दिन पहले एक जूनियर से पूछा एक्सपेंशन जॉइंट क्या गोई क्या त्रावान है, ये पागा इस ब्रिज एक्सपैंड माई पे कारण तो खतरे. तो आई लाफ्ट, मैंने कहा चलो ठीक है. बट कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, हमने बात की पेरेंट्स की, नीट की हमने बात की. मैंने आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल करा था, मैंने एक अच्छी चीज़ देखी, बैक टू स्कूल. अब स्कूल्स में गए थे कुछ दिन पहले, सो यू आर सो मच इन्वॉल्व इन टू दीज थिंग्स कि स्कूल लेवल पे अब आप शायद, आई थिंक यू हैव स्टार्टेड योर वर्क कहीं ना कहीं पे. मैं आपको वही सितारे ज़मीं पर का, कश्मीर के सितारे ज़मीं पर के आमिर खान तो आप ही हैं, बट व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दैट मॉरल एजुकेशन के बगैर कश्मीरी स्कूल्स में क्या मिसिंग लगता है आपको? I'll tell you that from 2014 I have been going to the schools, and I remember जब हमने ये स्टार्ट किया था, ये इसी नियत के साथ स्टार्ट किया था that no more civil engineers. I swear when we went for BTech and we were in RIMT University in Punjab, we had 90 students in class, 85 were from Kashmir. So जब हम देखते थे वहाँ पे that everybody is going for BTech civil, BTech civil, BTech civil, then we thought let's start with an initiative, and वहीं पे कहीं ना कहीं कश्मीर वेकअप ने जन्म लिया. मिनी And- कश्मीर कहते हैं ना Yes, उसको, yes, पिरामिड yes, को मिनी RIMT. कश्मीर कहते हैं. Yes, तो कश्मीर वेकअप ने जन्म लिया, wherein we counseled these students from class 8th only that please do not go into the BTech stream only. There are many other streams available, and we took those people who have excelled in other streams also. So that is the main motto, that we are going to these schools and trying to ना काइंड ऑफ काउंसल. अगर एक भी बच्चा चेंज हो जाता है तो आई थिंक दैट इज़ हमारी लाइफ का मकसद वही है. बट आई विल टेल यू आफ्टर दिस हैज़ हैपेंड एंड आफ्टर यू विल सी दैट 2000, आई विल टेल यू 16, 18, 20 तक बीटेक सिविल का बूम था कश्मीर में. बट एमटेक करने के बाद भी
those students were not placed anywhere, so that is why they have shifted to other streams. Now वहाँ से बीटेक का बहुत trend खत्म हो गया है, and now the problem that has started in Kashmir is that students are opting for BSc nursing. पैरामेडिकल जैसे का भी बूम हो जैसे गया। हमारा बूम सिविल का था, वैसा ही पैरामेडिकल का हो रहा है, एंड दैट वुड बी अ बिग डिजास्टर अगेन. वील हैव जैसे बीटेक सिविल में हुआ, यू वोंट बिलीव इवन आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिग्री somebody is getting paid 8,000 a month. I think सच that's है, a मतलब ना horrible सच thing that you can see, and same कहीं ना कहीं पैरामेडिकल के साथ होगा. So through this medium I want to tell you what we are telling in schools बेटा, that please and please do not go into these fields जहाँ हर कोई जा रहा है बेटा. that is not necessary कि वही अच्छा field हो. somewhere you have to see other streams also. AI is booming. data analyst का 6 month का course will give you an average package of 12 lakhs, ट्रू। rather than going for a 4 year BTech or going for 4 years in paramedical. That cannot give you 12 lakhs a year. That will give you 4 lakhs, 5 lakhs. But doing a data analyst course is much more better than going into this paramedical field. AI and ML is booming, IOI. That is booming. So try to choose your stream very, very wisely. Try to put in some efforts. Try to visit any good counselor, or Chat GPT can help you in the most better way. Use it in a positive way. Chat GPT पे search करो what are the best streams that are available, futuristic streams available. So do that search and you'll get your answer. ट्रू। RIMT की बात करूँगा पहले ऑफ ट्रैक जाके, क्योंकि पंजाब में जब हम पढ़ते थे तो हम एक ऑरा होता था RIMT यूनिवर्सिटी का हमारे मतलब ग्रुप में। तो भाई हम जाते थे सरहंद शरीफ नमाज़ पढ़ने, जुम्मा की नमाज़ के लिए। तो जब हम RIMT की गाड़ी देखते थे ना, तो फिर एक क्रेज़ था। तो जस्ट मुझे याद आया, बिकॉज़ RIMT यूनिवर्सिटी मिनी कश्मीर कहते थे उसको हम। इतने स्टूडेंट्स थे कश्मीरी, दिखता ही नहीं था कश्मीरी के बगैर कोई। आज भी है ना शायद वहाँ? आज भी है। तो चलिए, कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, क्या आपको लगता है कि जो अभी का ट्रेंड जा रहा है, इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स द स्किल्स? बिकॉज पहले क्या था, PhD तक जाते थे लोग, डॉक्टरेट करते थे, अब तो शॉर्ट जॉब लगेगी। मेरे ही एरिया में 2 लोग हैं जो ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं PhD करके। पॉइंट इज़, कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन क्या लाइफ या दुनिया आगे स्किल सेट्स की तरफ जा रही है? बिकॉज मेरे ग्रुप में एक लड़का ऐसा है जिसने पॉलिटेक किया है, एंड ही इज़ अर्निंग बेटर देन अस। व्हाई? बिकॉज उसको आफ्टर इफेक्ट्स आता है। So is it going towards the skills, and how is it? Is it good or bad? I think skills are much more better. Short-term skill courses are much more better. Tell me somebody when in 2010 tell somebody that I am going to make a career in YouTube as an influencer. Was this possible? No. People would mock us that what are they doing. But tell me how much people are making from YouTube. Tell me somebody who is into coding and all, how much they are making. And tell me how many apps are there in the market. Books are being replaced by the apps and all. So I think we have to choose futuristic courses. We have to choose futuristic skills. AI is going to boom. So I would request all the people after their 12th, rather than going into the traditional streams, go into these AI and other courses. And many skill development schemes are also available. Government is giving free subsidy to you. Free scholarships are being given to Stand Up India is there. I think Startup India, another for entrepreneurs, is there. So try to look into those schemes also. And EDI is also helping. They're helping with these skill development courses. So we have many companies opening up in Rangret also, wherein you'll see our juniors who just didn't do any BTech or any long-term degree. They have just completed their basic graduation from Kashmir University and are opening up startups which are giving turnover of more than 20 to 30 CR here in Kashmir. So it was a very big thing for us. But students and youngsters are doing it. So I would request all those to please get a proper counseling, and again use Chat GPT. Chat GPT has everything what you want. Tell him that I want this. They'll give you much more better reasons. And parents के लिए भी, they have to be technology friendly now, because I also, if I check Snapchat, मुझे नहीं चलाना आता, but my sister's daughter is I think 4 to 5 years of age. She comes to me with filters and all, but लग रहा है हम भी obsolete हो रहे हैं. We have to also keep on trending with the technology, and parents को भी देखना चाहिए to check their mobile phones of their wards, check their activities as well. नहीं, ऑब्सलीट पे मुझे याद आया, इस पे आई थिंक शाहरुख खान हैड वंस सेड कि सोता हुआ हाथी भी फुदकते हुए चूहे से बड़ा होता है। तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सी, सोसाइटी में बहुत सारे अभी मेनेसेस हैं, और आई थिंक आप भी सोसाइटी का अब एक पार्ट हैं। बट स्टूडेंट्स में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मेनेस है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है?
ओके, सो आई टेल यू ना बेसिक ऑब्जर्वेशंस जो मैंने देखी हैं, एंड दिस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन डेली लाइव्स, और जो आप लोगों तक ज़्यादा पहुंचती होगी। सबसे जो मैंने चीज़ देखा ना, दैट इज़ हमारे यहाँ ना डिसरिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम्म पेरेंट्स से बहुत झूठ बोल रहे हैं बच्चे। वो हम्म एक ना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ रही है। झूठ ऐसे बोला जा रहा है, इट लुक्स लाइक ना नॉर्मल सी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं वो हमें प्रॉब्लम हो रही है। देखो, एक कोट कुछ ऐसा है ना, मॉडर्न होने के चक्कर में ना कहीं बेहया कौम हो रही है। तो हम्म वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ रहा है। आर यंग जनरेशन ना, रेस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स इज डिक्रीजिंग, इज ऑन अ डिक्रीज। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर काम करना चाहिए। मॉरल वैल्यूज हमारे बहुत कम हो रहे हैं। इट इज़ कूल टू अब्यूज समबडी। नॉर्मलाइज कर दी ना व्हेन हमने वी ये वेर, चीज़ें। देखो, व्हेन वी वेर ऑन, जब हम भी बचपन में चलते थे रोड पे, तो देयर वाज सेट ऑफ एथिक्स, हम्म सेट ऑफ एटिकेट्स दैट वी हैड टू मेंटेन। Today, I think on that ground we are losing. You see a group of 5 to 6 boys sitting on road, they would be openly smoking. तो आई थिंक हाँ कहीं ना कहीं वो हया होता था ना कि कोई देख लेगा, नेबर देख लेगा। मैक्सिमम गुनाह तो मुझे लगता है, या मैक्सिमम गलत चीज़ें हमने इसलिए नहीं की बिकॉज वी यूज टू थिंक कोई देख लेगा, पेरेंट्स तक बात पहुंच जाएगी। तो वो रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वो हया होता था ना एक आंखों में, हम देखते थे कि पापा तक बात चली जाएगी, तो पहले तो ह्यूमिलेशन पहले से ही स्टार्ट होती थी। वो ह्यूमिलेशन ना कहीं नॉर्मलाइज हो रही है। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग दैट आई सी हैपनिंग इन द सोसाइटी। कहीं ना कहीं क्लासेस में भी, व्हेन यू सी, व्हेन आवर टीचर्स यूज्ड टू टीच अस, वी यूज्ड टू ना गिव दैट रेस्पेक्ट। टीचर को देखते थे, हम विश करते थे। बट टुडे आई थिंक स्टूडेंट्स थिंक हम फी पे कर रहे हैं, दैट्स इट, दे हैव टू हाँ प्रोवाइड द सर्विस। तो कहीं ना कहीं इसको ना एक ऐसे ही लिया जा रहा है, विदाउट एनी रेस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, विदाउट एनी हया ऑफ दोज थिंग्स। कहीं ना कहीं वो दिन ब दिन डिमेंश हो रहा है। बाकी ड्रग अब्यूज़, एवरीबडी नोज दैट समवेयर हमारे बच्चे, मैंने आपको पहले ही कहा, स्लीप डिसऑर्डर्स आर देयर, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स आर देयर। बट कहीं ना कहीं जब तक ये रेस्पेक्ट हम वापस नहीं लाएंगे, और इन आर स्कूल्स, इन आर पेरेंट्स और इन आर रिलीजियस तकरीर्स, हम कहीं ना कहीं बच्चे को ये डिफाइन नहीं करेंगे व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टीचर। एक उस्ताद का मर्तबा है उनकी लाइफ में, व्हाट इज़ देयर लेवल इन देयर लाइफ। तो कहीं ना कहीं वी आर लूजिंग दैट। पेरेंट्स की कितनी अहमियत है, हाउ डू यू हैव टू टॉक टू योर मदर, हाउ डू ट्रू यू हैव टू टॉक टू योर फादर। तो कहीं ना कहीं व्हेन यू सिट विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, आप देखोगे स्टूडेंट हु इज़ इन क्लास 7th क्लास 8th इज शाउटिंग एट हिज पेरेंट। पेरेंट कुछ उसको बोले करने के लिए, तो बच्चा नहीं नहीं मान रहा है। मानता तो है। आई थिंक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली ये हमने इतना नॉर्मलाइज़ कर दी हैं चीज़ें कि आप अगर गौर करेंगे, एक ज़माने में जब हम कुछ गलती करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे पख्त मास्टर्स निश। फिर वहाँ लेके जाते थे तो मास्टर के पास वो छड़ी होती थी, तथ उसका नाम अक्लनुमा। फिर उसे मार भी पड़ती थी, है ना? वो रखते थे। देखो, लेकिन आज अगर टीचर बच्चे को पीटता है, वो पेरेंट जाता है, तुमने मेरे बच्चे पे हाथ कैसे उठाया? कंप्लेंट रजिस्टर एंड होती है। दैट इज़ आई थिंक हाउ एक शिफ्ट हो गया, बिकॉज़ हमने नॉर्मलाइज़ कर दी। मेरे ग्रुप में गाली देना कूल है। नॉर्मलाइज़ हमने ये चीज़ कर दी कि अभी मैं सड़क से चल रहा हूँ, सड़क पे चल के अगर मैं से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नागवारा बात करता हूँ, ये कूल है। मैं लड़की पे कमेंट पा मुझे याद है, मुझे एक बार घर में से किसी ने देखा था एक ऐसे लड़के के साथ हू वाज़ नोन फॉर स्मोकिंग। मुझे उसके साथ देखा था एंड ही हैड अ सिगरेट एंड मैं नहीं पी रहा था, वो पी रहा था। तो मैं शाम के 5 बज रहे हैं, 6 बजे मैं घर कैसे जाऊँगा? साथ में घर मैं कैसे जाऊँगा? मामू है घर पे, उसको अगर इसने बोला होगा तो मैं अंदर उसने बोला ही नहीं था। मैं अंदर से सोच रहा हूँ क्योंकि वो मामू का फ्रेंड था। अब क्या एग्जैक्टली। करूँ? 8 बज गए, साढ़े 8 बज गए, 9 बजे मैं अंदर पहुँचा, मुझे डाँट इस बात पे पड़ी लेट क्यों हुआ? उसने बोला नहीं था, लेकिन मैंने यहीं से बोल दिया कि इससे पहले हो जाए। आज बच्चा क्या है कि उसमें ये चीज़ आई थिंक मैंने आपको ख़त्म हो बोला, गई है। एक पता है मुरसल भाई, आई थिंक वी आर ना फॉलोइंग वेस्टर्नाइजेशन ट्रेंड, हम फॉलो कर रहे हैं, बट हम नहीं देख रहे हैं देयर एंड रिजल्ट इज पैथेटिक। यू हुँ, सी द डाइवोर्स रेट्स दैट आर आउटसाइड। तो कहीं ना कहीं हम उसी स्ट्रीम पे चल रहे हैं इन ऑर्डर टू बी कूल। बट आई थिंक समबडी हैज़ टू इंटरफेयर हेयर, मे बी। हम कोशिश, मैंने आपको बोला, वेन एवर वी गो टू स्कूल्स, मैं ना अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ, बेटा, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट स्टार्ट टेकिंग योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर वाला आपको कौम की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं देगा। देगा। व्हेन वी वर इन दिस 8th 9th 10th 12th ग्रुप, आई वाज वेरी नॉन सीरियस, मैंने तब मेहनत नहीं की है। दैट इज़ वाई वी हैव टू स्ट्रगल एट दिस एज। ट्रू। इस एज पे कमिंग आउट एट 9 एंड गोइंग बैक टू होम एट 9 तो डिफिकल्ट होता है, बट आई नो दैट इन पास्ट आई हैव नॉट वर्कड हार्ड। तो हुँ, कहीं ना कहीं ये कंपनसेट लेटर ऑन एजेस में करना पड़ता है। तो बच्चों से बिफोर वी कंक्लूड, यही एडवाइस रहेगी दैट प्लीज़, आप जितना
कम एज पे मेहनत करोगे बेटा, उतना आपको कम करना पड़ेगा। जितना जितना आप एज बढ़ती जाएगी ना, उतनी ज़्यादा मेहनत बढ़ती जाएगी। लाइफ में कभी ना कभी मेहनत करनी है, तो जितना जल्दी एज पे करोगे, यंग एज पे करोगे, उतना आपको कम करनी पड़ेगी। एंड सेकंड, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ्स, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर 24 आवर्स। आप जब सोते हो, आप अपने 24 आवर्स देख लो, व्हाट डिड यू डू। एंड कहीं ना कहीं आपको दिल से आवाज़ आएगी दैट डिड आई यूटिलाइज दीज 24 आवर्स इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। एंड इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग दैट इन नेगेटिव वे, प्लीज़ एंड प्लीज़ काउंसिल योर सेल्फ दैट हमें कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते में अगर जाना है, दैट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आर 24 आवर्स। वो अलामा भी इस पे कहते हैं, मुझे पूरा शेर तो याद नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हर शाम को सूरज हमें यही पैगाम देता है, मगरिब में जाओगे तो डूब जाओगे। खैर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए, एंड ऑलवेज़ आपसे मिलके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू वट एवर यू आर डूइंग, और जो आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं वो, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। एंड यू डोंट नो हाउ प्राउड आई एम टू सी यू बिसाइड्स मी, कि आप ये काम करें कि मैं खुशी खुशी, मुझे अगर कोई बोलता भी है ना कि आप इनको जानते हो, मैं कहता हूँ मेरा भाई है, सीनियर जूनियर तो बात की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है दैट ना अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी दैट वी आर समवेयर ना बीइंग विद लिटिल चिल्ड्रन, एंड कहीं ना कहीं उन्हें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं दैट व्हाट कैन बी बेटर फॉर देम एंड व्हाट कैन नॉट बी बेटर फॉर देम। बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम जो बोलते हैं उसमें अल्लाह ताला असर रखे, ताकि जिससे भी हम ये बात करें और जो भी ये पॉडकास्ट देखें, जिसे कुछ समझ आए दैट हमने किस नीयत से ये पॉडकास्ट किया, तो उन तक वो मैसेज पहुँचे। थैंक यू सो मच। अपने ही मन में डूब के पाजा सुराखे ज़िंदगी, अपने ही मन में डूब के पाजा सुराखे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। द आरजे मुरसल पॉडकास्ट का आज का एपिसोड यहीं तक था। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, आपको कुछ सिखा सकें। आज भी इसी कोशिश के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।